Welcome to Health Commune. There is so much of knowledge that is there with doctors that probably people are not aware of. One such topic that is very close to my heart is the medical termination of pregnancy. Recent amendment in the act gives lots of empowerment to the women, but there are so much of information that we are not aware of. Whether we need the witness, how we are going to keep the confidentiality in place, what about the privacy, what about the legalities, what about the medical aspects. All these questions are being answered today. Today we have Dr. Indrajit Khandekar. Dr. Indrajit Khandekar is MBBS and MD in Forensic Medicine and LLB. That's why he's the best person to speak the medical aspect of termination of pregnancy as well as the legal aspects. So let's hear it from Dr. Indrajit. You have done your forensic as well as you have done your LLB. So you are a very unique combination of knowing the law as well as knowing the medico-legal aspect of the law and being a doctor. You also know that what are the patient points. Okay, or what are the medical aspects, okay, or what is the doctor's perspective. So you understand everything. So it's like a unique combination. And of course, we are celebrating Women's Health Month this time, and we want to create awareness which is not specifically related to pregnancy. Okay, and we are talking about women health, but in such a way that what are their rights. And one thing I have understood that women are not aware about the law the way we don't study finances. Similarly, we do not study our law. And we do not know what are my rights and what I should not do or what I should do. So today what we'll focus more on understanding abortion as a topic, and there is so much that we can understand from you later. Okay, but today let's focus on abortion. So abortion के लिए जो लॉ बना है इंडिया में वो कब बना और कब से एमटीपी का लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है? इंडिया में जो अबॉर्शन का एक्ट है वी हैव एमटीपी एक्ट, वो 1971 में आया है. उसके पहले भी एक एक्ट था जिसको हम 313, 14, 15 आईपीसी कहते थे. उसमें भी अबॉर्शन के कुछ क्लॉजेस थे, बट वो अबॉर्शन को इतना रेगुलेट नहीं करते थे. इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि एमटीपी को भी हमने कुछ रेगुलेट करना चाहिए. और जो पुराना लॉ है एमटीपी में अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है. तो इन अमेंडेड एक्ट आई मस्ट से दैट इट गिव्स मोर पावर टू वुमन इन अमेंडेड as compared to the old act. So MTP Act इसलिए लाया गया कि उसे प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए. उसमें जो विदाउट कंसेंट ऑफ द वुमन जो अबॉर्शन होते थे या जहाँ मल्टीपल लोगों के कंसेंट चाहते थे पब्लिक, वो सबको रेगुलेट करने के लिए और वुमन को एम्पावर करने के लिए MTP Act लाया गया. उसमें एक चीज़ भी उन्होंने एक्स्ट्रा रेगुलेट की है, कंसेंशुअल एमटीपी ऑल्सो दैट हैज बीन रेगुलेटेड. उसके बहुत सारे रीजंस है कि बियॉन्ड नाउ एमटीपी बियॉन्ड 24 वीक्स कब की जा सकती है, बियॉन्ड 20 वीक्स कब कर सकते हैं और बियॉन्ड 12 वीक्स कब कर सकते हैं. इतने सारे उसमें रेगुलेशंस है. ओके, सो ये जो एक्ट है that is protecting women and women's rights. Yes. Also, it is empowering her to take the decision for going for abortion as well as the consent and who should be with her and who should not be. And for that, the law is in place. And law is there since many years. Okay, but now the amendment is happening about that. Amendment is very good for as far as women are concerned. Unmarried females also. Unmarried females are concerned. Okay, the recent amendment that happened. Okay, perfect. Now, so what are the absolute indications of MTP? If we want to do MTP up to 20 weeks, 20 weeks तक हमको MTP करना है, तो certain indications are there. First, the continuation of pregnancy would cause grave injury to woman's health. उसके health को कोई endanger करता है, तो in that case we can do MTP up to 20 weeks. उसके बाद अगर fetal abnormality है, जिससे if child being born alive will not be able to survive, so उसमें हम MTP कर सकते हैं. और एक थर्ड है कि to cause grave injury to mental and physical health of the woman. अगर continuation of pregnancy उसके mental और physical health को injury करती है तो भी हम abortion कर सकते हैं. Okay. अब इसमें ये भी है कि mental और mental health को injury करने का मतलब क्या होता है? Like failure of contraception of an unmarried girl is also termed as a mental injury to mental health of the woman. Okay. या pregnancy due to rape will also be termed as a mental injury to the woman. Okay. तो ये grounds है. और beyond 24 weeks भी यही ground आते हैं. Sorry, beyond 20 up to 24 weeks. लेकिन उसमें
अप टू 24 वीक्स कुछ सर्टन कैटेगरी को उन्होंने अप्लीकेबल किया हुआ है, लाइक कोई माइनर है तो 24 वीक्स तक आप अबॉर्शन कर सकते हो। ओके। अगर माइनर नहीं है तो सिर्फ 20 वीक्स तक जो दिया हुआ है क्राइटेरिया। अगर वो रेप विक्टिम है तो अप टू 24 वीक्स। ओके। लेकिन एक्ट में और एक क्लॉज डाला हुआ है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर है वो आप 20 वीक्स तक ही अप्लीकेबल है। ओके। बियॉन्ड 20 वीक्स आप वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक फीमेल को कहा कि दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज इनवैलिड। तो एनी वुमन should do abortion till 24 weeks even if there is a contraceptive failures. Okay. And a contraceptive failure भी है तो woman 24 weeks तक abortion कर सकती है। Okay. So what we are discussing is up to 24 weeks abortion is MTP is possible. Okay. Beyond 24 weeks also possible, but there are few indications. अगर continuation of pregnancy life of the woman endanger करता है तो MTP कर सकते हैं आप at any place. इवन इफ दैट प्लेस इज नॉट रजिस्टर्ड आप कर सकते हो, बट एंडेंजरिंग लाइफ होना है तो। और बियॉन्ड 24 वीक्स एमटीपी और कर सकते हैं हम अगर इफ इट इज फाउंड दैट द चाइल्ड हैज अ सीरियस कंजेनाइटल एनोमली। इन दैट केस ऑल्सो हम एमटीपी कर सकते हैं, बट दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द मेडिकल बोर्ड। इंडिविजुअल डॉक्टर कैन नॉट टेक दैट डिसीजन। और बियॉन्ड 24 वीक्स जो एमटीपी होंगी उसके लिए 2 डॉक्टर्स लगेंगे एमटीपी करने के लिए आफ्टर मेडिकल बोर्ड। सिंगल डॉक्टर कैन नॉट डू एमटीपी बियॉन्ड 24 वीक्स। एंड व्हाट इफ इट्स एन इमरजेंसी? हाँ, इन इमरजेंसी ऑल द रेगुलेशन जितने भी है दैट विल बी केप्ट इन एबेंस, वो नहीं लागू होंगे इन इमरजेंसी। इन इमरजेंसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन डू एमटीपी इवन इफ there is no permission for him to do MTP or that place is not registered. तो मैंने कहा ना कि जहाँ वुमेन की लाइफ एंडेंजर हो रही है और इमरजेंसी में अगर हम MTP नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, बिकॉज आवर क्राइटेरिया इज टू सेव द लाइफ ऑफ दैट वुमन। बट अगर ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, तो रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे एप्लीकेबल हो। तो इतने सारे क्राइटेरियाज है, तो लेकिन सेंटर रिकग्नाइज होना चाहिए। okay. अगर वो इलेक्टिव अबॉर्शन है तो इलेक्टिव अगर एमटीपी है तो सेंटर रिकग्नाइज होना चाहिए। और जो मैंने बताया कि वही डॉक्टर वो एमटीपी कर सकते हैं। okay. जो डॉक्टर के पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं है वो एमटीपी नहीं कर पाएंगे। okay. So what we are talking over here is a girl वो प्रेग्नेंट है और she doesn't want to continue the pregnancy, right. And she is pregnant for less than 24 weeks, right. And then what the abortion is medical termination of the pregnancy. That's what we are discussing. Now let's consider different scenarios. ठीक है कि we are talking about, assume that there is a girl who's a minor, less than 18 years of age, and there could be different scenarios by which she's pregnant. Okay, maybe because of rape or may not be because of rape. So what law talks about it? जब भी हॉस्पिटल में अगर लड़की का डॉक्टर को ये पता चलता है कि शी इज उसका जो कंसेप्शन का जो एज है, जो सेक्स का जो एज है, या फिटस जब फॉर्म होता है तो उसका एज अगर बिलो 18 ईयर्स है तो दैट इज टर्म एज रेप, सेक्सुअल असॉल्ट एज पर पोक्सो एक्ट। ठीक है, वो कंसेंशुअल है या नॉन कंसेंशुअल है, डजंट मैटर। यानी उसके कंसेंट से भी हुआ है सेक्स, वो अगर चिक के बोलती भी है कि मेरा कंसेंट से सेक्स हुआ है, that doesn't matter. Doctor has to report this case to police as a rape case or sexual assault case. रिपोर्ट करना है। बट हाँ, उसको पूरा राइट है कि वो एमटीपी करेंगी। She has full right. लेकिन वो 18 years के नीचे है तो कंसेंट ऑफ गार्जियन और केयर टेकर इज रिक्वायर्ड। हर एमटीपी कैन नॉट बी डन बाय हर कंसेंट। हाँ, इमरजेंसी है तो विदाउट कंसेंट भी डॉक्टर एमटीपी कर सकता है, प्रोवाइडेड वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है तो। करेक्ट। तो इसलिए मेरा ये बोलना है कि जब भी आपका कोई मेंसेस नहीं आता है और आपको लगता है कि आपका सेक्स हो चुका है और मेंसेस नहीं आए, देयर शुड बी सस्पिशियस दैट यू आर प्रेग्नेंट। और प्रॉपरली एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप करते हो तो विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन एमटीपी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिले करोगे तो उतनी तकलीफें बढ़ती है और फिर सर्जिकल इंटरवेंशन आता है तो और हार्म हमें हो सकता है। तो एज अर्ली एज अप्रोच करिए, बिंदास अप्रोच करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉ हैज गिवन एम्पल पावर टू अ गर्ल, और हमारे यहाँ अभी इतना अच्छा है कि हम रेगुलेट कर पा रहे हैं और जो लीगल एमटीपी है वो काफी स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, तो इसलिए हमें डरना नहीं है। और वो आपका राइट है, वेदर यू आर अनमैरिड, whether you are a married, whether you are a minor, doesn't matter. बिंदास चाहिए।
ओके और दो चीज़ें, मतलब ऑफ कोर्स जो माइनर बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से बात करें, उनके साथ अपना ओपनली बताए कि क्या प्रॉब्लम है, एंड दे विल हेल्प यू, ठीक है, कि वो डॉक्टर के पास आपको ये जाएंगे। अगर पेरेंट्स अगेंस्ट है और फिर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो तो आप एक रिकॉग्नाइज सेंटर ढूंढ के, तो ये रिकॉग्नाइज सेंटर कैसे पता चलेगा कौन सा सेंटर रिकॉग्नाइज है? सेंटर के पास जाइए, वो आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, किसी भी जो भी आपके रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिस उनके पास जाइए, और रजिस्टर सेंटर जो भी है वो बाहर बोर्ड लगा होता है कि दिस सेंटर इज रजिस्टर्ड फॉर एमटीपी। ओके, ठीक है, अबॉर्शन साठी हे कायदेशीर रजिस्टर्ड है, वो लिखा हो रहेगा, मराठी में भी लिखा रहेगा, हिंदी में भी लिखा रहेगा, तो आप इजीली पता कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी है कि 12 वीक्स के लिए एक माइनर रजिस्ट्रेशन लगता है, बियॉन्ड 9 वीक्स मेडिकल टर्मिनेशन हो जाता है विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। इसलिए बिंदास जाइए। सिर्फ मेरा एडवाइस एक ही रहेगा कि बिफोर हैविंग सेक्स ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस। आई ऑलवेज एडवाइज दिस कि हमें पता है कि फीमेल की लाइफ पे असर पड़ सकता है, तो ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस और यूज प्रोटेक्शन, ये बता दूंगा। सो लेट्स कंसीडर द सिनेरियो दैट शी इज अनमैरिड and pregnant and wants to go for MTP. What are her rights? If she's more than 18 years, she is unmarried, उसको पूरा राइट है कि वो उसका MTP करे, उसके कंसेंट से ही MTP होगा, कोई थर्ड पर्सन का कंसेंट नहीं लगेगा, इवन विटनेस का भी कंसेंट नहीं, ओनली हर कंसेंट इज रिक्वायर्ड। और रहा उसके बच्चे के फादर का नाम, सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि अगर कोई लड़की अपने बच्चे का नाम नहीं बताना चाहती, फादर का नाम नहीं बताना चाहती, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। आपको उसका ही नाम डालना है एज अ गार्जियन और पेरेंट, वही आपको डालना है। तो इसलिए डॉक्टर लोगों को मेरा एक एडवाइस रहता है कि जब भी कोई अनमैरिड लड़की आती है तो उसके फादर का नाम इंसिस्ट मत करिए। इफ शी इज विलिंग टू गिव, गो फॉर इट, बट अगर वो नहीं देती है तो डोंट इंसिस्ट फॉर दैट नेम, बिकॉज वो लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज लॉ में कंसेंट ऑफ द वुमन, दैट गर्ल इज इम्पोर्टेंट, नॉट ऑफ थर्ड पर्सन। तो इसलिए अनमैरिड वुमेन्स के लिए भी अच्छा एक्ट है। इफ शी इज अनमैरिड एंड अडल्ट भी है तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एज अ ग्राउंड फॉर एमटीपी शी कैन यूज वेरी वेल। करेक्ट। और अगर कोई वन गर्ल हु इज अबव 18 फादर का नाम नहीं बताना चाहती बट शी गोज अलोन, ओके, एंड इट्स अ प्रोसीजर, अज्यूम दैट इट्स नॉट जस्ट अ प्रिस्क्रिप्शन बट द प्रोसीजर फॉर एमटीपी, इज इट रिक्वायर्ड कि उसको विटनेस भी साथ में लेके आए? लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ शी इज फिट टू गिव कंसेंट, मेंटली एंड फिजिकली फिट, तो उसके कंसेंट से ही एमटीपी होना है। आपको कोई विटनेस नहीं चाहिए, नो थर्ड पर्सन चाहिए, नो थर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड। तो विटनेस का बहुत सारे डॉक्टर्स लोग, हॉस्पिटल बहुत इंसिस्ट करते हैं। इसमें एक बात क्लियर करना चाहूंगा मैं कि हमारे पास इंडियन मेडिकल काउंसिल इथिक्स एंड एटिकेट्स रेगुलेशन एंड रूल्स है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि पेशेंट से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें थर्ड पर्सन को डाइवर्ज नहीं करनी है, वो प्रोफेशनल सीक्रेट रखने हैं। करेक्ट। और अगर हम वो डाइवर्ज करते हैं विदाउट एनी फोर्स ऑफ लॉ एंड पब्लिक इंटरेस्ट, तो दैट विल बी टर्म एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ओके। और इसमें डॉक्टर का नाम भी रजिस्टर, मेडिकल रजिस्टर से रद्द किया जा सकता है। हाँ। तो जब हम विटनेस मांग रहे हैं, अगर कोई हॉस्पिटल विटनेस मांग रहा है, अगर वो 18 के ऊपर है, लॉ कहता है कि उसके कंसेंट से ही हमें एमटीपी करना है। और कोई डॉक्टर अगर विटनेस मांग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, विटनेस को उसकी इंफॉर्मेशन जा रही है और डॉक्टर फोर्स कर रहा है कि विटनेस लाओ, तो डॉक्टर इनडायरेक्टली इज वायलेटिंग द प्रोफेशनल सीक्रेसी ऑफ द पेशेंट, एंड दैट विल बी टर्म एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर कोई पेशेंट बाद में केस फाइल करता है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल या स्टेट मेडिकल काउंसिल कि वह डॉक्टर ने विटनेस जबरदस्ती मुझे मंगवाया है और मेरी प्रोफेशनल सीक्रेसी उसे वायलेट हुई है, तो डॉक्टर के अगेंस्ट एक्शन ले, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। okay. इसलिए डॉक्टर शुड आल्सो बी केयरफुल कि जो लॉ में है उसे फॉलो करिए। अननेसेसरी हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कंडीशन या एक्स्ट्रा लीगल कंडीशन हमें इम्पोज नहीं करने हैं। करेक्ट। एंड इवन इफ इट इज नॉट इन द लॉ, कुछ हॉस्पिटल्स बोलते हैं ये हमारी इंटरनल प्रोसेस है कि हमें विटनेस चाहिए, तो फिर उस टाइम पे पेशेंट मतलब क्या करे? नहीं, उसमें एक इशू ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है, कोई भी हॉस्पिटल की मैनुअल, कोई भी गाइडलाइन है, इवन गवर्नमेंट ने कोई सर्कुलर इशू कर दिया है या गाइडलाइन इशू की है जो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि वो फॉलो नहीं करनी है, और दैट गाइडलाइन शुड बी क्वैश इमीडिएटली। तो जब सुप्रीम कोर्ट अगर ये बोलता है कि लॉ के अगेंस्ट कोई गाइडलाइन आती है और वो गवर्नमेंट भी अगर इशू करता है, तो वो गाइडलाइन खारिज हो जानी चाहिए इमीडिएटली, और लॉ वो गाइडलाइन किसी को फॉलो नहीं करनी है। तो इवन इन दैट वे हॉस्पिटल्स कैन नॉट इम्पोज देयर ओन गाइडलाइंस। कोई भी हॉस्पिटल लॉ के अगेंस्ट गाइडलाइन नहीं बना सकता, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइन बना सकता है,
बट लॉ को अपोज करने के लिए या लॉ में एक्स्ट्रा कंडीशन डालने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बन सकती। लाइक सपोज उसमें लिखा है 18 साल, हमारे लॉ में कंसेंट दिया हुआ है 18 साल, तो हमारा हॉस्पिटल नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे लगता है 21 साल, वो नहीं कर सकता, वो 18 साल। और दूसरा है कि जैसा मैंने कहा कंसेंट ऑफ द वुमन इज रिक्वायर्ड, नॉट हस्बैंड या एनी अदर इज रिक्वायर्ड। तो कोई हॉस्पिटल नहीं बोल सकता कि मुझे हस्बैंड का कंसेंट चाहिए, बिकॉज वो अगेंस्ट द लॉ है। और जब हम अगेंस्ट द लॉ चलते हैं तो वी आर लायबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसलिए हॉस्पिटल ने भी अवेयर होना चाहिए कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, नॉट कि हमारे पर्सनल व्यूज को फॉलो। So continuing with a girl who's an adult and she wants to go for abortion, MTP. She does not give her father's name. She does not ask for, hospital is not asking for any any witness. Okay, but the documents are there with the hospital. Later point of time she'll get married and from somebody the would-be will get to know that probably इसका MTP हुआ था, किसी ने तो बताया, बुआ मौसी ऐसे। तो क्या that guy can go to the hospital and ask for the records? हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट और इथिक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम किसी भी थर्ड पर्सन को दे नहीं सकते, किसी भी थर्ड पर्सन, किसी भी, एक्सेप्ट ओनली गार्जियन अगर माइनर है तो। लेकिन वंस दैट पेशेंट बिकम्स अडल्ट वो उसके गार्जियन को भी दे नहीं सकते, दैट इज वन श्योर। MTP एक्ट में भी क्लियर कट है कि उसके जो इन्फॉर्मेशन है किसी को भी डाइवर्ज नहीं कर सकते प्रोफेशनल सीक्रेट्स, ठीक है। तो दोनों भी एक्ट है, तो उसमें लेकिन डाइवर्ज कब कर सकते हैं वो भी है। डाइवर्ज हम कर सकते हैं कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो डाइवर्ज कर सकते हैं। Okay. दूसरा, अगर कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या वो नोटिफाइबल डिसीज है, अभी MTP इज नॉट नोटिफाइबल डिसीज, ये कम्युनिकेबल डिसीज भी नहीं है, तो मैं उसको इन्फॉर्म नहीं कर सकता। तो इसलिए थर्ड पर्सन जब भी आएगा हॉस्पिटल में वो बोलेगा कि मैं इसका हस्बैंड हूँ या होने वाला हूँ, डॉक्टर मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डाइवर्जिंग द इंफॉर्मेशन। डॉक्टर को सिंपल डिनाई करना है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है तो RTI कोई फाइल करता है तो आपको सिंपल डिनाई करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट की हमारे पास एज ए डॉक्टर करके आती है वो इंफॉर्मेशन हम किसी को भी डाइवर्ज नहीं कर सकते, दैट इज अ प्रोफेशनल सीक्रेट। तो अगर वो कोई डाइवर्ज करता है तो पेशेंट को पूरा राइट है कि वो हॉस्पिटल के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल राइट है, फुल राइट। ओके, तो ना ही हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड और इवन पेरेंट्स कैन आल्सो अगर वो गो टू द हॉस्पिटल। एडल्ट है तो नोबडी कैन गो एंड आस्क फॉर दोस रिकॉर्ड्स। अगर कोई एडल्ट, लेकिन हाँ पेशेंट अनफिट है, पेशेंट अनफिट है उसके लाइक MTP हुआ है और उसका उसमें अब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो गया, उससे वो अनफिट हुआ कॉम्प्लिकेशन। इन दैट केस इफ पेशेंट इज अनफिट, इन दैट केस दैट कंडीशन इज बिकॉज ऑफ MTP, तो वो रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं फॉर फ्यूचर ट्रीटमेंट। उतना ही करेक्ट। ओके, और अगेन विद द कोर्ट, लाइक कोर्ट कैन ऑर्डर एनी काइंड ऑफ अ थिंग, बट इट इज अ डॉक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी टू कीप द कंप्लीट प्राइवेसी एंड सीक्रेसी ऑफ। अगर कोर्ट भी मांगता है, डॉक्टर को बोलता है कि रिकॉर्ड हमें हैंड ओवर करो, तो कोर्ट ने लिखना चाहिए कि दे आर द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, एंड सो कोर्ट को भी अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको ही डाइवर्ज की जाए जिनको इसकी नीड है, सो दैट की प्रोफेशनल सीक्रेसी ऑफ द पेशेंट मेंटेन रहे। ओके, ये हमने देना चाहिए। ओके, नाउ अज्यूम दैट you know the married girls are there or married women, she wants to go for MTP. Okay, probably you know her husband or family is not supporting. Can she go on her own for the abortion MTP? हमारा जो MTP एक्ट है उसके अंदर MTP करना नहीं करना ये फुल राइट उस फीमेल का है। इवन इफ शी मैरिड डजंट मैटर, शी कैन इंडिविजुअली गो टू द हॉस्पिटल और शी कैन गेट इट डन, वो MTP करवा ले सकती है। हॉस्पिटल अगर हस्बैंड का कंसेंट मांगता है तो दैट इज इलीगल। Okay. हॉस्पिटल ने ये हस्बैंड का कंसेंट मांगना नहीं है, वो 18 के ऊपर है, मैरिड है अनमैरिड डजंट मैटर, डॉक्टर हैज टू डू MTP। अगर वो MTP इंडिकेशन में बैठते हैं और वो रजिस्टर्ड सेंटर है तो ठीक है, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो डॉक्टर हैज टू डू। विटनेस का भी कंसेंट नहीं मांगना है, किसी का भी नहीं। और कुछ डॉक्टर लेकिन मैंने देखा हुआ है कि जो हस्बैंड का कंसेंट मांगते हैं दैट इज इलीगल। वो भी उसका प्रोफेशनल सीक्रेट है, आपको हस्बैंड को भी बताना नहीं है, वो खुद होके लेके आ रही है, इट्स ओके, बट आप किसी को बोल नहीं सकते कि किसी तुम्हारा हस्बैंड को लेके आओ, दैट राइट डॉक्टर डू नॉट हैव। वो 18 के ऊपर है, डॉक्टर हैज टू डू MTP एज पर MTP regulations if that case falls within the ambit of MTP act. Okay, can husband object in case of abortion? Can he say that if a girl wants to go for MTP but husband said कि नहीं तुम MTP नहीं कर सकते करके? ये अच्छा केस है।
अभी रिसेंटली मैं पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लेता हूँ पूरे महाराष्ट्र में, तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खंडाड़ा, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा था पुलिस ऑफिसर का। तो मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछा कि एक कंप्लेंट हमारे पास आई है बोले सर। तो मैंने पूछा क्या कंप्लेंट है, तो उसका बोलना है कि मेरे वाइफ ने एमटीपी की है, मेरा कंसेंट नहीं था, डॉक्टर ने मेरा कंसेंट लिया नहीं और उसका एमटीपी कर लिया, ठीक है। तो मुझे उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट केस फाइल करनी है कि मेरे कंसेंट के अलावा आपने एमटीपी कैसे किया। तो मुझे पूछा उन पुलिस ऑफिसर ने कि सर इसमें क्या लॉ है। तो आई एक्सप्लेन देम लॉ कि आप उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि एमटीपी एक्ट के रेगुलेशन के हिसाब से वुमेन्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड, हस्बैंड कैन नॉट क्लेम हिज राइट ओवर दैट एमटीपी, दैट इज ये। तो इसलिए मैंने पुलिस को भी कहा कि आप ना हॉस्पिटल को नोटिस इशू करें, कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव डन एमटीपी, दे हैव फॉलोड द एमटीपी रेगुलेशंस। हाँ, अगर वो रजिस्टर्ड सेंटर नहीं है तो उसी के लिए आप एक्शन ले सकते हो, अदरवाइज देयर कैन नॉट बी एनी एक्शन अगेंस्ट द डॉक्टर। Okay. So now, contraception failure is the one of the indication that you said for MTP. तो इसमें clarity कैसी रहेगी? Like, what will say that okay, can everything that girl was taking contraception, and is it the only indication? Do we need to mention that? मतलब what's the law in that? उसमें कैसा है, प्रीवियसली हमारे पास जो एक्ट था उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर जो ग्राउंड है फॉर एमटीपी वो सिर्फ मैरिड फीमेल के लिए था, ओनली मैरिड वुमेन्स, ठीक है। तो इसलिए काफी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया, उसके ऊपर डिबेट भी किया, ऑब्जेक्शन लिया। तो नाउ because of that pressure, government had made the law correct now. I must say that now correction has been done and it is a proper correction. Now contraceptive failure is a ground for each and every woman, whether she is a married or unmarried, doesn't matter. Okay. So simply she can say that because of contraceptive failure of either partner, not only her, my partner has not used the contraception, or he has used the contraceptive but that failed. That is the only ground she can use. बट अगर उसे वो ग्राउंड यूज नहीं करना है तो शी कैन यूज अदर ग्राउंड लाइक कंटिन्यूशन ऑफ आई एम अनमैरिड गर्ल, तो कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी विल। प्रीवियसली क्या होता था, जब कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर मैरिड वुमन के लिए था तो ये अनमैरिड गर्ल ये प्रोविजन यूज नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए फिर डॉक्टर क्या करते थे कि एज शी इज अनमैरिड, कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी विल endanger her mental health or hamper her mental health or will cause grave injury to her mental health. तो that's why इस क्लॉज में डालते थे हम लोग, और उसकी वजह से हम एमटीपी करवा पाते हैं। लेकिन अभी हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर यूज कर रहे हैं। Okay, of either of the partner can be the reason for MTP, and you may not have to be married for that indication. Okay. तो और एक सिनेरियो है कि whether the girl is minor, okay, or adult, can anybody forcefully ask her to go for MTP? No one can ask her to do MTP forcefully. Even minors cannot be forced. इसके ऊपर एक केस भी हुआ है कोर्ट में, जहाँ माइनर्स का एमटीपी था, माइनर का एमटीपी करना था, लेकिन वो नहीं विलिंग थी तब एमटीपी करने के लिए, तो कोर्ट परमिटेड हर टू कंटिन्यू। ओके, ये भी। ओके, एंड इन केस ऑफ एडल्ट, लाइक नो वन कैन। एडल्ट में तो बिल्कुल हर कंसेंट इज ओनली द क्राइटेरिया, नथिंग एल्स। तो अगर फैमिली प्रेशराइज कर रही है कि नहीं, मे बी हस्बैंड इज नॉट रेडी फॉर द बेबी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और फैमिली देयर इज डिफरेंट इश्यूज, एंड इफ दे आर सेइंग कि तुम्हें अबॉर्शन करना है, उस सिचुएशन में व्हाट अ गर्ल शुड डू? फोर्स नहीं कर सकते हैं, बट मेरा ये बोलना है कि सब सोच समझ के डिसीजन ले। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम तो होनी है, आपने कितना भी सोचा इसका मतलब वो डिसीजन परफेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं। आज आपने एक डिसीजन ले लिया, कल आपको लगता है कि मैंने गलत कर दिया, या आज नहीं लिया तो कल लगता है कि हमने कर लेना चाहिए। तो वो तो है, इंडिविजुअल के हिसाब से वेरी होगा। अल्टीमेटली यू हैव टू टेक योर डिसीजन, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो वी आर ओनली रिस्पांसिबल फॉर दैट कॉन्सिक्वेंसेस, ये हमें सोचना पड़ेगा। You know, we always say that time is money, but in case of 24 weeks, time is over here is also life, right? Like more complications, all that happen. और मैंने देखा है कि जैसे गर्ल्स जो रहती है, अगर वो अनमैरिड है या सिंगल है, या फिर इवन आफ्टर मैरिज भी है, और इफ शी डजंट वांट अ बेबी, after conceiving, once she get to know that she's pregnant, they take time to decide and think and all those things, right? और उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है, राइट? तो वो what do you want to suggest to those girls? इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि जितना ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा प्रेगनेंसी का, उतना एमटीपी की रिस्क बढ़ती जाती है। करेक्ट। इसलिए मेरा सबको यही एडवाइस है कि डिसाइड एज अर्ली एज पॉसिबल,
क्योंकि जितने जल्दी करो ना, क्योंकि जितना एज बढ़ेगा बहुत, और आफ्टर 24 वीक्स तो आपको मेडिकल बोर्ड ही बैठाना है, तो फिर वो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसलिए इट इज बेटर है कि आप जितने जल्दी बिफोर 20 वीक्स इट इज बेटर। आई ऑलवेज से कि 20 वीक्स इज बेटर, क्योंकि आफ्टर 20 वीक्स भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। हो रहा है, ऐसा नहीं कि एमटीपी 30 वीक्स में भी करता है, ऐसा हो रहा है। बट जितने आपको लगता है कॉम्प्लिकेशन कम हो तो इमीडिएटली आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतनी, अगर एमटीपी करना ही है तो एज सुन एज पॉसिबल आपको करना है। करेक्ट। उसमें हॉस्पिटल अगर कहते हैं कि आप पुलिस से एनओसी लेके आ जाओ करके फॉर एमटीपी, सो इज इट द लॉ दैट यू हैव टू गेट द एनओसी? ऐसा बहुत जगह हो रहा है कि अगर वो रेप केस है या पोक्सो में जा रहा है केस, तो बहुत जगह हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, वो पेशेंट को बोलते हैं कि पुलिस का एनओसी लगता है एमटीपी के लिए। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे केसेस, एक केस में शेयर करूंगा। उस केस में डॉक्टर ने यही कहा कि हमें पुलिस का एनओसी चाहिए फॉर डूइंग एमटीपी। बाद में वो पेशेंट और रिलेटिव पुलिस के पास गए, पुलिस ने कहा कि आई एम नॉट ऑथराइज टू गिव एनओसी, आप कोर्ट के पास जाओ। वो लोअर कोर्ट में गए, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि आई एम ऑल्सो नॉट ऑथराइज, आप अपर कोर्ट में जाओ। सेशन कोर्ट ने भी यही कहा, सेशन कोर्ट ने भी कहा कि आई एम नॉट ऑथराइज। तो अल्टीमेटली दैट रेप विक्टिम हैज टू अप्रोच हाई कोर्ट फॉर एनओसी एंड परमिशन टू डू एमटीपी। हाई कोर्ट हैज पास स्ट्रिक्चर अगेंस्ट द पुलिस एज वेल एज द मैजिस्ट्रेट एज वेल एज द डॉक्टर। उन्होंने ये कहा, दे क्लैरिफाइड द लॉ कि लॉ में पुलिस परमिशन या एनओसी फ्रॉम द पुलिस या परमिशन फ्रॉम द कोर्ट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन इफ इट इज अ रेप केस। लॉ में सिर्फ एक ही डिक्टम है, इफ इट इज अ रेप केस डॉक्टर हैज टू इन्फॉर्म द केस टू पुलिस एंड दे कैन डू देयर प्रोसीजर एज पर द एमटीपी regulations and act. In spite of that clear law, these doctors as well as police officers as well as courts are forcing for permission from the court. That is an illegal thing. तो इसलिए एनओसी आपको मांगनी नहीं है किसी हॉस्पिटल को, एनओसी बिल्कुल ना मांगे। इस कोर्ट ने ये भी कहा कि बिकॉज ऑफ दिस एनओसी बहुत सारे प्रीशियस वीक जो है वो पास हो चुके हैं, यानी उसको करीबन 10-12 हफ्ते लग गए कोर्ट के वहां तक पहुंचने के लिए। तो नाउ शी हैज अप्रोच द एज ऑफ बियॉन्ड 20 वीक्स। पुरानी लॉ की बात कर रहा हूँ, जब बियॉन्ड 20 वीक्स एमटी परमिसिबल नहीं थी। तो ये सब इश्यू होते हैं, और कोर्ट ने ये भी कहा, कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट कि इन एमटीपी ईच एंड एवरी डे इज इम्पोर्टेंट। सो इमरजेंसी में इसका अबॉर्शन हो जाना चाहिए, और इसके आगे कोई भी एनओसी ना मांगे और किसी की परमिशन ना मांगे। If that case fits into MTP Act and regulation and guidelines, doctor has to conduct MTP without waiting for NOC from police department, even if it is a case of NOC. Okay. Even if it is a case of rape. So मेरी sincere request है सभी डॉक्टर्स को कि वो कोई भी extra judicial condition like NOC from police department, consent of the third person, witness, ये सब आप प्लीज मत करिए। इससे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है और हम अननेसेसरी केसेस कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और ये सब इलीगल चीजें अगर हम करते जाएंगे तो अल्टीमेटली वी आर लायबल फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। करेक्ट। You know, like personally, like it's again my very very personal opinion. I'm not a big fan of word called women empowerment. Okay, I feel that it is just it's just not required. In fact, I like the word, you know, another phrase which says that knowledge is power, right? And today whatever we have discussed, like half of the things even I was not knowing, ये forensic में तो पढ़ाते नहीं है, और you are also changing the textbooks now. So what I got to know and what feeling I'm getting is, as long as what we have discussed about MTP, our law is very much supportive of women, and they have lots of rights, as well as law is very much in favor of them. But अगर आपको पता है कि law क्या है, तो फिर आपको पता होगा कि आप already कितने powerful हो। लेकिन अगर आपको लॉ और आपके राइट्स पता नहीं है तो आपको लगेगा कि आप वीक हो एंड यू आर डिपेंडेंट एंड देन यू विल डू मिस्टेक्स, ऑल दोस थिंग्स। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये भी ज़रूरी है कि आप जैसे डॉक्टर आके हमको बताए कि नॉलेज एक्चुअली करेक्ट नॉलेज क्या है। आज जो कंप्लीट डिस्कशन हमने किया, तो मुझे लगता है कि वी हैव गिवन मैसेज टू गर्ल्स कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहो, नॉलेज आपके पास ये पूरा आपने सुन लिया होगा तो काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। आई थिंक वी हैव गिवन मैसेज टू द बॉयज़ एज वेल दैट बी little careful and take the responsibility of your acts, क्या कर रहे हो करके, and you can be responsible for so many consequences. Okay, अगर आप करते हो तो consequences होना ही है, especially telling all the women and everyone that ठीक है, आप 15 मिनट अगर आप मैराथन करते हो
साइक्लोथॉन करते हो या विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप कुछ पॉडकास्ट सुनते हो या कुछ सोशल मीडिया पे देखते हो, वो 15 मिनट आप लॉ भी पढ़ लोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो इन्वेस्ट योर passion for empowerment of women in the right direction. That will actually help women. So thank you so much for My pleasure. picking up this topic.